Good morning, students. I hope my voice is audible. We will wait for one more minute and then we will start. All the students, please keep your videos on. If you are starting the today's contents, please switch on your videos, all the students. Omkar, Komal and Poonam, please turn on your videos. And everybody keep your mic mute. Poonam and Komal. Yes, sir. Yeah, keep your video on and keep your mic mute. Okay, so now today we'll start with the actual contents. Whose mic is on? Okay, so today we'll see first the syllabus part. Why this sound is coming in background? So first we will see your subject is HR elective and it is strategic human resource management and HR policies. Okay, so this syllabus is divided into 4 units. First is SHRM overview, second is HR strategies, third is HR policies, and fourth is recent trends in SHRM. First chapter
Hello. Something wrong with the audio. It is giving lots of echo. So first chapter is about strategic human resource management, meaning, features, evolution, objectives, advantages of SHRM, barriers to SHRM, SHRM versus traditional HRM, steps in the SHRM, roles in the SHRM, top management, frontline management, HR, changing role of HR professionals, models of SHRM, high performance working model, high commitment management model, and high involvement management model. This is overview. Next is HR environment trends and HR challenges. And next is linking SHRM and business performance. So this is chapter 1. So we will start with chapter 1, and later on, as and when we progress, I will give you update about the syllabus. And if you are referring to the textbook, then syllabus is in textbooks also. So always keep close watch on the syllabus, because that gives you idea that what you are going to learn. It may happen that student do not pay any attention on the syllabus, and sometime professor may skip something. नहीं आता भगा दो, कौन देख रहा है, स्टूडेंट कहाँ देखते हैं, okay, and then finally बोलेंगे syllabus हो गया. So I make my student to follow the syllabus, so that even कल को अगर मैं भी कुछ भगाने की कोशिश करूँ तो आप लोग मुझे पकड़ सको कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया. So anyways, मैं तो ऐसा करूंगा नहीं, but still it is advisable to follow the syllabus in almost all the subject. बाकी सब सब्जेक्ट में छोड़ दो, मेरे सब्जेक्ट में करो, ऐसा नहीं है, because that will give you idea about your skill set. जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था आपसे कि you should have a skill set, और वो skill set क्या है आप कैसे बता पाओगे कि जो आपका syllabus है वही आपका skill set है. इसके अलावा भी हो सकता है, you can have more than your syllabus also, depending on what is needed. आपको अपना ड्रीम करियर चुनने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्किल सेट में वेरी. इट मे बी समथिंग बियॉन्ड सिलेबस, समथिंग दैट इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज सब्जेक्ट, टुडेज टॉपिक, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज समथिंग दैट वी यूज. ओके, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज 4 M's थे: मैन, machinery, money, and manpower, machinery. Okay, and then later on उसमें ऐड हुआ management and market. Okay, then उसमें later on हुआ this thing methods. ये सब भी रिसोर्स है. इनिशियली 4 M थे, उसके बाद में 6 M हो गए, उसके बाद में 7 M हो गए. मे भी पॉसिबल है फ्यूचर में कोई और पर्सन कोई और ऐड करे तो 8-10 M भी हो जाए. सो एनीवे, what we are concerned is resource. के resource means जो हम लोग कुछ ना कुछ यूज करते हैं to get our objective clear. Now human resource, human भी एक resource है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो बिना पर्सन के नहीं चलेगी. आपके पास सारे resources है, मटेरियल है आपके पास मशीनरी है, बट मैन पावर नहीं है. आप कैसे काम करोगे? क्योंकि मशीन को चलाने के लिए, मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए. विदाउट मैन पावर वी कैन डू नथिंग. तो हमें मैन पावर चाहिए. सो इनिशियल ओल्ड एज में ऐसा था कि मतलब भाई किसी एक पर्सन को एज ए HR मैनेजर रख लिया कि भाई आप जो है वो रिक्रूटमेंट करो, हमें अकाउंट्स के लिए कुछ लोग चाहिए, हमें प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए. Then he was used to get an idea कि हाँ who is capable of doing production, किसको प्रोडक्शन का नॉलेज है, किसको अकाउंट्स का नॉलेज है, and then he was used to recruit. But slowly and gradually things started getting changed. कंपटीशन बढ़ने लगी, सक्सेस बहुत ही अल्टीमेट हो गया. एक जमाना था कि जब लाइफ वॉज वेरी स्मूथ एंड सेटल्ड. सुबह आदमी 10 बजे काम पे जाता था, 6 बजे तक काम किया, वापस निकल के घर पे आओ, रिलैक्स करो, दूसरे दिन वापस काम पे जाओ. वो जमाना तो आप लोग ने शायद सुना भी नहीं होगा, हमने तो देखा है वो जमाना. बट देन कंपटीशन बढ़ने लगी, लोग 24/7 काम करने के लिए तैयार रहने लगे कि भाई हमें आगे बढ़ना है, वी वांट टू प्रोग्रेस. प्रोग्रेस की भूख लोगों को सोने नहीं देती. रात दिन काम करने की सोचते हैं. 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम चलता है फैक्ट्रीज में. 24 घंटे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट कर दो, 24/7 कंपनी चालू.
क्या है जरूरत इसके प्रति? लोगों की ग्रीड फॉर सक्सेस, ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर पावर। तो ये सब की वजह से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बाकी रिसोर्स की तरह नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स इज डायनामिक। जैसे कि आप अगर कोई मशीन ले आओ, अब आप एक मशीन लाओ या 100 मशीन लाओ, वो सबके सब एक ही तरीके से काम करेंगे, राइट? जैसे कि मोबाइल फोन का कोई मॉडल आईफोन प्रो मैक्स 6, आपने एक मोबाइल में आईफोन 6 प्रो मैक्स लिया या आपने 100 लिए, सबके सब एक जैसे ही काम करेंगे। इट विल सेम सिचुएशन इन द सेम सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ह्यूमंस आर डिफरेंट। ह्यूमंस, हर पर्सन इंडिविजुअल अलग अलग तरीके का होता है। दो ह्यूमन सेम नहीं होते, भले वो जुड़वा भाई बहन क्यों ना हो। दो दे आर ट्विंस, दे आर नॉट 100% सेम। उनमें उनका कुछ खुद का कैपेबिलिटीज है, उनकी खुद की आइडियोलॉजी है, उनकी खुद की सोच है, उनकी खुद की एक्सपर्टीज है, खुद का टैलेंट है। हर चीज बताने पर उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेवल की हो सकती है। हर चीज पे उनका रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। एंड सेम थिंग हेल्प्स इन द बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक कि जो सेल्समैन होते हैं वो सब एक ही तरीके से काम करते हैं? नो, वो लोग अपना टारगेट अचीव करने के लिए अपनी पर्सनल स्किल्स यूज करते हैं। कस्टमर को ल्योर करने के लिए वो अपनी पर्सनल स्किल यूज करते हैं। सो दे आर डिफरेंट। सो तभी लोगों की समझ में आया, या एचआर फील्ड में ऐसा इमर्ज हुआ कि भाई ये जो है ये ह्यूमन कैपिटल है। दिस आर नॉट ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन कैपिटल है। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मतलब कि जो आप यूज करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। कैपिटल मनी, कैपिटल प्लांट, कैपिटल इक्विपमेंट, कैपिटल मशीनरी, कि जिस सब का बिजनेस चलता है उसे बोलते हैं कैपिटल। सो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करना चालू किया लोगों को। दे आर नॉट जस्ट रिसोर्सेज कि दो लोगों को मंगवा लो, ओके, रमेश हो या महेश हो या सुरेश हो, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग सेम ही काम करेंगे। नो, हर पर्सन की अपनी थिंकिंग होती है, हर पर्सन की अपनी स्किल्स होती है, और उनकी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज कंपनी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है। जैसे कोई कंपनी का सेल्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसका रीजन ढूंढे तो पता चले कि भाई इनके सेल्स पर्सन जो है बहुत ही डायनामिक है, दे आर वेरी गुड, इसलिए उनका सेल्स इतना अच्छा है। कस्टमर को अप्रोच करने का, कस्टमर से बात करना, कस्टमर को कन्विंस करना और कस्टमर से बिजनेस कन्वर्ट करना, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल स्किल्स। ये स्किल्स कंपनी नहीं सिखाती। कंपनी इनको जनरल गाइडलाइन देती है कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है, आपको इस रेट में बेचना है, आप इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, दैट्स इट। उसके आगे टोटली डील करना है सेल्स पर्सन को खुद को। सिमिलरली अकाउंट्स, प्रोडक्शन, सब चीज में यही चीज कॉमन है कि पर्सन जो है अपनी स्किल्स का यूज करके वो अपने काम को बेटर या डिफरेंट बनाता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको उन्होंने एक वैल्यूएबल पोस्ट दी के ह्यूमन कैपिटल, एंड नाउअडेज इट इज कंसीडर्ड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स नहीं कोई गिनता। बहुत ही ऑर्डिनरी काम है, जैसे कि जिसमें स्किल की जरूरत नहीं है, जैसे कि सामान की हमाली करना है, यहाँ से वहां ले जाओ, वहां पर शायद कोई इतना ध्यान न दे। वरना आपने ये वर्ड सुने रहेंगे, स्किल एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, शायद आपने ये वर्ड सुने रहेंगे, स्किल्ड वर्कर्स या सेमी स्किल्ड वर्कर्स। तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होता है जिनको कुछ मेथड्स आती है, जिनको कुछ ट्रेनिंग दी गई है, ओके। स्किल वर्कर्स यानी जिसको ज्यादा ट्रेनिंग मिली है, जिसे ज्यादा नॉलेज मिला है किसी भी काम को करने का, ओके। और अनस्किल वर्कर्स मतलब सीधा साधा काम, जो मजदूरी का काम है, जिसमें आपको ज्यादा अपनी स्किल्स की जरूरत नहीं है। ये सामान को यहाँ से उठा के वहां रख दो, जो ट्रक आई है ट्रक में से पूरा सामान को अनलोड कर दो और गोडाउन में रख दो, ऐसे कामों के लिए अनस्किल पीपल यूज होता है। अदरवाइज सब जगह पे स्किल की वैल्यू है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से भी कहा था कि अपनी स्किल सेट बिल्ड करो। जो भी ड्रीम करे आपको एडॉप्ट करना है, उसके लिए अपनी स्किल सेट जो है वो ट्रेन करो, अपनी स्किल सेट को शार्प करो। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ में एक वर्ड आया स्ट्रेटेजिक। नाउ स्ट्रेटेजी वर्ड जो है वो इटसेल्फ, उसका मतलब होता है एक लैटिन अमेरिकन वर्ड पे से आया था, स्ट्रेटेगोस। स्ट्रेटेगोस मतलब के कमांडरशिप। वो वॉर के रिलेटेड वर्ड है ये, कि वॉर में दुश्मन की मूवमेंट को देखकर अपनी मूवमेंट बनाना और लड़ाई में व्यूह रचना बनाना, कि लड़ाई में अपनी व्यूह रचना बनाओ, दुश्मन को हराओ। ट्रेनिंग का वॉर। आजकल या
is winning a war. Winning a war. या मतलब सेम चीज। तो आजकल जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो भी वॉर जैसा ही है, उसको वॉर फुट पे ही लिया जाता है। ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है, वरना हमारे इंडिया में तो पहले ऐसा नहीं था। हमारे इंडिया में था लिव एंड लेट लिव। हमारे इंडिया में हजारों साल पहले जब ये यूरोपियन वगैरह जो जंगल में आदि मानव की तरह घूमते थे, तभी हमारे यहाँ पर प्रोग्रेस हो चुका था। वी वर वेरी एडवांस्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कल्चर हमारा था। ओके, हमने हजारों साल पहले ये आइडिया दिया था वसुधैव कुटुंबकम। ओके, कि पूरी दुनिया मेरा क्या है, मेरा घर है, मेरा फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब अर्थ, एंड वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया मेरा फैमिली है। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट था, फैमिली फैमिली फैमिली। आप लोगों को ही एक दूसरा सब्जेक्ट है सीआरएम, कस्टमर सर्विस। ये चीज दोनों में कॉमन है। सीआरएम आपको सब्जेक्ट होता है, आप लोग ने से इलेक्टिव लिया है नहीं लिया, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो उस सीआरएम में भी बेस यही है कि हम लोग के यहाँ पर तो ऐसा था कि फैमिली 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 सिस्टम थी। हमारे पास छोटे छोटे विलेजेस में इंडिया बटा हुआ था। ओके, तो छोटे छोटे विलेजेस में हर विलेज में एक सप्लायर था, हर चीज के लिए एक सप्लायर था, और वो हमारा फैमिली मेंबर जैसा था। जैसे कि फैमिली कारपेंटर, फैमिली गोल्डस्मिथ, फैमिली बार्बर, फैमिली डॉक्टर, यानी कि हर प्रोफेशन के लिए एक एक एक्सपर्ट हर विलेज में थे, और वो उस विलेज को कैटर करते थे। वहां पर कोई कंपटीशन का एलिमेंट नहीं था। एंड वो लाइक फ्रॉम सेंचुरीज एंड पुरखों से, यानी कि फ्रॉम जनरेशंस वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे। यानी कि मुझे अगर कोई कारपेंटर सर्विस दे रहा है तो मेरे फादर को उस कारपेंटर का फादर सर्विस देता था, मेरे ग्रैंडफादर को उस कारपेंटर का ग्रैंडफादर सर्विस देता था। इट वॉज अ लिव एंड लेट लिव कॉन्सेप्ट कि भाई तुम तुम्हारे गांव में खुश रहो, हम हमारे गांव में खुश है। देयर इज नो क्लैश, नो कॉम्पिटिशन, नो वॉर। ये वॉर वाला फंडा जो है उसको मैं समझा रहा हूँ कि इंडिया में हम लोग लिव एंड लेट लिव वाला कॉन्सेप्ट चलाते थे। एवरीबडी वाज हैप्पी, क्योंकि वो जो विलेज था उसके लोगों को अपनी सब चीजों के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर था, और उस सर्विस प्रोवाइडर के पास पूरा गांव, पूरा विलेज एज ए कस्टमर था। इसलिए बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक रिलेशन चलता था। बट देन केम द ब्रिटिशर्स, एंड ये थोड़ा मेरा पर्सनल व्यू है कि दे आर द रास्कल्स। ये पूरी वेस्टर्न की जो थर्ड क्लास कल्चर अपने यहाँ पर आया, उसने हमारा पूरा बिजनेस बदल दिया। उन लोगों ने पर्पसली हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उन लोगों ने हम सबको भिखारी बना दिया। जो पहले ऐसा था कि गांव में किसी के घर में शादी है तो गोल्डस्मिथ को बुलाते थे, क्योंकि गांव का गोल्डस्मिथ था, मतलब उसका फैमिली गोल्डस्मिथ। उसको बुला के बोलते थे कि भाई घर में आके जरा मदर और फीमेल्स को मिल लेना, शादी है घर में, गहने बनाने हैं। दैट पर्सन वाज यूज्ड टू मीट देम, उनको जो भी चाहिए वो सप्लाई कर देता था, रीजनेबल रेट लगा देता था। देयर वाज नो सच थिंग कि डिस्काउंट क्या होगा, रेट क्या लगाओगे, नथिंग। इट वाज अ प्योरली ट्रस्ट कि भाई पुश्तैनी नहीं सप्लायर है हमारे, हमसे थोड़ी ज्यादा लेंगे। बट ये अंग्रेजों के आने के बाद दिस रास्कल्स हैव मोल्डेड अस इन अ वे दैट के बाद में लोग अपने गांव के पर्सन को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे कोटेशन दो। दैट सिस्टम वाज नॉट देयर अर्लियर इन इंडिया। उसने कोटेशन मांगना शुरू किया, फिर भिखारी की तरह बाजू के गांव में गया, वहां के गोल्डस्मिथ को बोला तुम कोटेशन दो। वहां से भी उसका दिल नहीं भरा, बाजू वाले गांव में गया, उसके पास से कोटेशन मांगा। अब जो मेरे गांव का सप्लायर है, जो मेरा ट्रेडिशनल सप्लायर है, जो मेरा फैमिली गोल्डस्मिथ है, उसने बेचारे ने 1 लाख रुपीस का कोटेशन दिया। अब उसमें उसका मार्जिन था 20,000 रुपीज, बट क्वालिटी वॉज रियली गुड, इट वॉज नो चीटिंग एट ऑल। बट जब बाजू वाले गांव के पास कोटेशन मांगा गया तो उसने कहा मेरा कस्टमर है, दे दो 70,000, विच वॉज नॉट एक्चुअली कॉस्ट ऑल्सो। लेकिन उसको पता है कि भाई ये बाहर से आया हुआ है, मेरा कस्टमर थोड़ी है। एज ए रिजल्ट चीटिंग, फूलिंग, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई। और उसके बाद नेक्स्ट गांव वाला तो उसने बोला कि भाई मेरा तो कस्टमर है ही नहीं, दे दो 40,000 का कोटेशन, नकली सोना घुसा दो। ओके, एज ए रिजल्ट जो मेरा ट्रेडिशनल सप्लायर था उसके पास से बिजनेस चला गया। मैंने वो जो जनरेशंस की ट्रेडिशन थी उसको मैंने इग्नोर कर दिया पैसों की लालच में।
एज ए रिजल्ट आफ्टर सम टाइम जो नेबर था उसके गांव में कुछ शादी है, तो उस पर्सन ने भी वही चीज की, कोटेशन मांगो कोटेशन मांगो कोटेशन मांगो। अब मेरे जो सप्लायर को लॉस हुआ था उसने बोला कि अब बेटा तेरी बारी आई, अब आया हूं पहाड़ के नीचे। सेम थिंग ही डिड विद द नेबर। किसी थर्ड पर्सन जिसने कोटेशन देता उसके गांव में किसी की शादी है, वहां पर सेम थिंग। मतलब एज ए रिजल्ट कस्टमर की छीना झपटी शुरू हो गई। पहले जो एक सेटिस्फैक्ट्री एक बाउंड्री थी कि मेरे विलेज में जो भी मुझे बिजनेस मिलेगा वो मेरे कस्टमर्स, वहां की जगह पे अभी छीना झपटी शुरू हो गई। और जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था कि वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज, वो सारा जो है वो खत्म हो गया। और लोग डिस्काउंट, ये पैसे बचाओ, मनी सेविंग, डिस्काउंट, ये सब के चक्कर में लोग यहाँ वहां घूमने लगे। और एज ए रिजल्ट ना तो सप्लायर को कोई ट्रस्ट रहा कस्टमर्स के ऊपर, ना तो कस्टमर को सप्लायर पे ट्रस्ट रहा। एज ए रिजल्ट चोरी, छीना झपटी, ये सब चीजें कॉमन हो गई। एंड ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर की देन है। पर छीना झपटी करोगे आपका कब तक काम चलेगा? आप कितने लोगों के पास छीनोगे अपना बिजनेस? आपका भी तो बिजनेस कोई छीन लेगा। तो एज ए रिजल्ट फॉरेन के लोगों को वो चीज बाद में अक्ल में आई कि भाई इससे तो लाइक एक रोटी और 3 कुत्ते जैसा हो गया सिचुएशन, कि 3 कुत्ते की रोटी पे झपटते हैं तो किसी को भी पेट भर के खाने नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट वहां पर भी उनको अक्ल आई और वो लोग सब रिसर्च वगैरह करने में लोग बहुत आगे हैं। मतलब वो कुछ भी R&D करने बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो उन लोगों ने रिसर्च किया कि भाई एक नया कस्टमर जनरेट करना है तो आपको 6 टाइम्स हायर अमाउंट लगेगी एक पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए। एक पुराने कस्टमर को रिटेन करना है आपको, तो आपको 100 रुपया अगर एक्सपेंडिचर आता है तो एक नया कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपको 600 रुपीज का एक्सपेंडिचर आएगा। तो अच्छा क्या है? मतलब पुराने कस्टमर को रिटेन करो, उसको खुश रखो, उसको लॉयल रखो, एंड फिर वो यू टर्न मार के वापिस एक बड़ा सा उन लोग ने साइंस बना दिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का। जबकि हमारे कल्चर में, इन इंडियन कल्चर, हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट था फैमिली। अब फैमिली से ज्यादा किसी को आप वैल्यू दोगे? कोई भी दुनिया का XYZ पर्सन, उसकी वैल्यू फैमिली से ज्यादा नहीं होती। तो पहले तो हमने हमारे सप्लायर को हमारा फैमिली मेंबर बना दिया था। फैमिली बार्बर, फैमिली कारपेंटर, फैमिली गोल्डस्मिथ, फैमिली ब्लैकस्मिथ, फैमिली टेलर, फैमिली डॉक्टर। बट बिकॉज ऑफ दिस रास्कल अमेरिकन या फॉरेन कल्चर या अंग्रेजों का कल्चर, उसकी वजह से हम लोग आज उस लेवल पे आ गए हैं कि हम हमारे खुद के रूट भूल गए। आज ऐसा कुछ नहीं बचा फैमिली फैमिली फैमिली। ऑनलाइन देखो, घर के बाजू में हमारा सप्लायर है, उसको छोड़ के हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, क्यों? सस्ता पड़ता है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो तुम्हारा बाप आया था अमेजोन से, या कौन आया था? फ्लिपकार्ट से आया था कोई तुमको देने के लिए एक भी चीज? तब वही लोग काम आए थे जो हमारे गली के नाके पे दुकान लेके बैठे हैं। मतलब वी हैव लिटरली बिकम लाइक अ प्रोस्टिट्यूट्स, जहां पैसा सस्ता मिला जाओ वहां पर। शेम ऑन अस। और इसके पूरा उसका रीजन, पूरा उसके जो रूट्स है वो है फॉरेन के कल्चर में। एनीवे, आपको आई थिंक एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 में ही है, इंडियन इथोस। वो इंडियन इथोस मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। मैंने उसको मैक्सिमम पढ़ा था। उसमें दिखाते कि हमारा कंट्री कितना ग्रेट था और किस तरह से इन फॉरेन के लोगों ने हमारे कल्चर को लिटरली क्रश डाउन कर दिया। हमें ऐसा बना दिया कि हमें खुद के कल्चर पर नाज नहीं है, पर हम अमेरिकन और ब्रिटिश बनने में बहुत ही अपने आप को कॉलर टाइट समझते हैं। हमें अपने इंडिया के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता और हम फॉरेन की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कॉलोनियलाइजेशन, ये। ओके, एनीवेज, दिस इज माय पर्सनल व्यूज। सो वी विल बैक विद द सब्जेक्ट। सो ये जो पूरी छीना झपटी, कस्टमर्स को खींचना, कस्टमर को ग्रैब करना, कस्टमर को अपने तरफ मुंह लेके आना, उसके लिए ये वॉर बन गया। लोगों के लिए बिजनेस एक वॉर बन गया और इसलिए उसमें स्ट्रेटेजी बनाने का नौबत आई। वरना अगर सब अपने अपने सर्कल में खुश रहते तो क्यों किसी को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती? इनफ बिजनेस मिल जाता था। जो भी अपने विलेजेस में जो अपने फैमिली जो थे, फैमिली बार्बर, फैमिली कारपेंटर, उन सबको इनफ बिजनेस मिल जाता था। किसी को कोई जरूरत नहीं थी। नोबडी वाज नीडेड कि आप जो है कोई स्ट्रेटेजी बनाओ, इसको एज ए वॉर लो। डू नॉट।
आपके पास इनफ कस्टमर्स है, बट सिंस द टाइम हैज नाउ चेंज्ड, अभी बिजनेस को एज ए वॉर लिया जाता है. पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल वांट टू ग्रैब द मैक्सिमम ऑफ द कस्टमर्स. मार्केट शेयर सबसे ज्यादा चाहिए, वांट टू बी नंबर 1 इन द मार्केट. मार्केट में दूसरों को खत्म कर दो. फॉरेन कल्चर का ये है हमें गिफ्ट के भाई अपने कंपटीशन को किल कर दो, किल द कंपटीशन एंड बी द नंबर 1. तो इसीलिए अभी वहां पर स्ट्रेटेजी आई, स्ट्रेटेजी बनाओ हाउ टू गेट द मैक्सिमम. और इस स्ट्रेटेजी को जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के गोल्स, उन सबको लिंक करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, HRM के साथ, ताकि आपको ऐसे एम्प्लॉइज मिले हु आर द बेस्ट इन अचीविंग द गोल्स. कंपनी के जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए उनको बेस्ट ऐसा एम्प्लॉय मिले. तो इसीलिए इसको कहा गया स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है उसको वो लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके. अगर मेरे जो क्लाइंट है, सॉरी मेरे जो एम्प्लॉइज है, ओके, वो किसी भी फील्ड में हो, या लाइक प्रोडक्शन में हो या अकाउंट्स में हो, दे आर इन लॉजिस्टिक्स, दे शुड अंडरस्टैंड द कंपनी स्ट्रेटेजी वेल. और इसीलिए स्ट्रेटेजिक HRM का जो है अभी नाउअडेज एवरीवेयर दे आर यूजिंग स्ट्रेटेजिक HRM. नॉर्मल HRM दे आर यूजिंग स्ट्रेटेजिक HRM, सो दैट कंपनी के each and every employee working in the same direction, they work with the same goal, they work with the same understanding कि कंपनी को क्या चाहिए. And when they are having that understanding, that common understanding, they will work in a better manner. उनका स्किल सेट भी ऐसा होता है, okay, so that they can join the company, and join करने के साथ ही they can give their best. Now definition क्या है? What is the definition of SHRM? Strategic Human Resource Management defined as the alignment of strategic business goals of the organization. कि आपके strategic business goal with the human resources to foster innovation and improve motivation, satisfaction, productivity, and eventually overall performance. Means once आपके जो strategic goals है उसके साथ आपने HRM को align कर दिया, so what you will get? You will get achievement of the business goals, foster innovation. Innovation means to do something new, to do something in a better manner, to do something in more efficient manner, to do something in attractive manner, to do something in a manner which gives you some kind of saving of resources, saving of time, saving of money. Okay, then to improve motivation. एम्प्लॉइज काम करते तो उनको मोटिवेशन भी चाहिए. अगर मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ते रहो लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आप कब तक पढ़ोगे? जब आपको मोटिवेशन है कि जब आप पढ़ोगे तो आप यू कैन बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, यू कैन बी द टॉपर ऑफ द कॉलेज, आपको आगे चल के आपके करियर में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. सो दैट इज मोटिवेशन. किसी भी काम को करने के लिए जब मोटिवेशन दिया जाता है, पीपल डू इट विथ मोर एंथुजियाज्म. सो इसीलिए हमेशा कंपनी के एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए. दे शुड बी हैप्पी टू डू समथिंग, दे शुड बी एबल टू गेट द वर्क ऑन देयर शोल्डर. वो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ले, उसके लिए उनको मोटिवेशन चाहिए. दे नीड मोटिवेशन. मोटिवेशन नहीं है तो पीपल को एंथुजियाज्म नहीं मिलता. नेक्स्ट इज इट इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन. अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो तो यू विल परफॉर्म द बेस्ट. जैसे आपको कॉलेज में अच्छा नॉलेज मिलता है तो यू विल लव टू कम टू कॉलेज, यू विल लव टू अटेंड द लेक्चर्स. बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में ही नहीं आ रहा, या जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही घटिया लेवल का है, तो यू विल नॉट फील लाइक अटेंडिंग माई क्लास, कोई भी क्लास बना. सो यू हैव टू हैव सेटिस्फेक्शन. जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं वो आपको मिले तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है. अगर वो बेटर तरीके से मिले तो यू आर मोर एंथुजियास्ट. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी. एक कंपनी में जो भी काम होता है, ईच एंड एवरी पर्सन अगर अपना 100% आउटपुट दे तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है. कंपनी का सेल्स बहुत इंप्रूव होता है, कंपनी का प्रोडक्शन ए क्लास होता है, क्वालिटी बेस्ट होती है, एंड इवेंचुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो ये सब खुश है, सब लोग अपने काम को दिल से कर रहे हैं. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का विल बी ऑन द टॉप नॉच. और यही है मेन पर्पस ऑफ SHRM कि आप ऐसे लोगों को ले आओ
कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह समझे, दे वर्क वेरी नाइसली, वर्क विद द होल हार्टेडली, वर्क विथ वेरी एंथुजियाज्म, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस गेट्स इम्प्रूव्ड। सो स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड न्यू टर्म, अभी रिसेंटली 90s के लाइक 90s से ये जो टर्म है वो यूज होना शुरू हुआ, लोगों को उसके बारे में पता चला, लोगों ने उसको हाईलाइट किया कि ये स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, नॉर्मल एचआरएम नहीं है। इन 90s से ये स्टार्ट हुआ एंड उसकी मिस्टर गैरी डेसलर ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस फॉर्मुलेटिंग and executing human resource policies and practices that produce the employee competencies and behaviors that company needs to achieve its strategic aims। यानी कि मिस्टर गैरी डेसलर का कहना है कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है मतलब कि आप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को आप क्या करो, फॉर्मुलेट करो, ऐसे बनाओ और उसको इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, सो दैट के एम्प्लॉइज कैपेबल बने, एम्प्लॉइज की कॉम्पिटेंसी बढ़े, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़े एंड उनका बिहेवियर इतना प्रोडक्टिव हो कि वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक एम्स को क्या करे, अचीव करे। ये उसका डेफिनेशन है। हर एक चीज में जहां पर लोग रिसर्च करते हैं उसकी वो एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन का पार्ट था, दिस इज वन डेफिनेशन। ओके, क्लियर है इतना? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एसएचआरएम। के इंपॉर्टेंस क्या है एसएचआरएम का, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो मैंने कहा 90s से स्टार्ट हुआ, अब 90s मतलब पिछले करीब 20-25 साल या उतना अमाउंट, 90s बाद में 2010s मतलब 2020s, हम लोग 2020 में मतलब अराउंड 20-30 साल से जो है वो ये चीज को हाईलाइट हुआ, लोगों की समझ में आया, लोगों ने उसको डिफाइन किया, फिर लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सो ये जो है पहले ऐसा था कि मतलब एचआरएम सिर्फ लोगों को एम्प्लॉय करके या उनको ट्रेन करके उनका रोल खत्म हो जाता था, लेकिन आजकल एचआरएम का रोल वहां पर खत्म नहीं होता। आजकल एचआरएम का रोल होता है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग करो, जो भी एम्प्लॉइज है उनको आपने रिक्रूट किया है वो अपने काम में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस की सिचुएशन डायनामिक होती है, डायनामिक कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए जो भी चेंजेस आते हैं, ये जो नया रिक्रूटेड स्टाफ है जिसको एसएचआरएम के तहत रिक्रूट किया गया है, वो भी उस तरह से डायनामिकली चेंज होना चाहिए, कोई भी चीज को वो एडॉप्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको उस तरह से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सो दैट दे कैन अडॉप्ट टू द चेंजेस, दे कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सेम पॉजिटिव मैनर द वे दे आर सपोज्ड टू डू। यानी कि मैंने कोई एक प्रोडक्शन के लिए एक पर्सन होगा, कल को प्रोडक्शन की मेथड चेंज हो गई तो उस पर्सन को वो चेंज वाली मेथड भी समझ में आनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू चेंज हिमसेल्फ एज पर द नीड। जैसे कि एक जमाने में लोग साइकिल पे जाते थे, बाद में मोटरसाइकिल आई तो लोगों ने मोटरसाइकिल सीख ली सो दैट दे कैन रन द मोटरसाइकिल। फिर मोटरसाइकिल के बाद कार आई तो लोगों ने कार चलाना सीख लिया। तो दैट पर्सन शुड बी एबल टू डू दैट। जो भी चेंजेस आते हैं उसको चेंज को अडॉप्ट करके, उस चेंज को फॉलो करके नए एनवायरनमेंट में विद द न्यू चेंज सिस्टम वो लोग उतनी ही एफिशिएंट से काम करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। क्लियर ये? बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी परमानेंट, चेंज ही परमानेंट है। यानी कि चेंजेस होना लाजमी है, चेंज होता रहता है। अपनी डे टू डे लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ चेंज होता है। अपने आप को देखो आईने में, क्या आप 5 साल पहले ऐसे थे? सम चेंजेस विल बी देयर, फिजिकल चेंज, मैच्योरिटी लेवल में चेंज, एजुकेशन में चेंज, कुछ ना कुछ आपने इंप्रूव किया, कुछ ना कुछ आप में बदला है, आपकी कुछ थॉट प्रोसेस बदली होगी, आपका कुछ आइडियोलॉजी बदली होगी। ओके, नाउ स्ट्रेटेजिक एचआरएम जो टॉप मैनेजमेंट है वो और एचआर हेड दोनों के बीच में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा अलाइनमेंट होना चाहिए सो दैट एचआर हेड कैन अंडरस्टैंड द चेंजिंग नीड ऑफ द मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट और एचआर हेड के बीच में ऐसा अलाइनमेंट होना चाहिए कि उसे इमीडिएटली समझ में आए कि भाई क्या चेंजेस चाहिए,
मैनेजमेंट को क्या चाहिए, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट ही है जो बिजनेस का डायरेक्शन डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट ही है जो बिजनेस की पॉलिसीज डिसाइड करता है. सो देयर आर सम पॉइंट्स या फिर सम चैलेंजेस है कि जो एचआर फेस करता है. क्या क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट एचआर फेसेस द चैलेंजेस? फर्स्ट इज क्रॉस कल्चरल इश्यूज एंड इंटरेक्शन. कंपनी में बहुत तरह के लोग काम करते हैं, अलग अलग. जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि हमारे पास सब तरह के लोग हैं, हर तरह का कल्चर है हमारे पास. ओके, नॉर्थ का कल्चर अलग, साउथ का कल्चर अलग, ईस्ट का कल्चर अलग, वेस्ट का कल्चर अलग, ओके, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग. तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो उनके कल्चर में कभी कभी इश्यू होता है, सम टाइम उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सम टाइम उसमें कुछ ये होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हिकअप्स होते हैं. एक कल्चर दूसरे कल्चर का कुछ इन सम वेज अपोज होता है, डिफरेंसेस होते हैं. तो क्रॉस कल्चर इश्यूज एंड इंटरेक्शन के उसको कैसे हैंडल किया जाए. नेक्स्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन, कि दुनिया का पूरा काम करने का तरीका भी वर्ल्ड लेवल पे चला गया है. यानी कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बिजनेस करता हूँ, वो मुझे वर्ल्ड के हिसाब से करना चाहिए, तभी मैं मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला सकूं, या आई कैन गेट द कस्टमर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब. तो इसलिए जब इंटरनेशनल होता है तो उसमें भी बहुत सारे चेंज, बिकॉज सेम वे इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर, जो अपने यहाँ पर कल्चर का डिफरेंस था, सेम चीज आपको इंटरनेशनल में मिलती है. कि फॉरेन में कुछ ना कुछ ट्रेंड्स अलग होते हैं, अपने यहाँ पर अलग होते हैं, उससे एकोमोडेट करना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है. नेक्स्ट इज चेंजिंग ओनरशिप ड्यू टू इंक्रीज मर्जर एंड एक्विजिशन. कि आजकल क्या होता है, कोई कंपनी को दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, ये एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मर्जर हो गया, तो ऑब्वियसली जो नए लोग आएंगे उनके साथ बात भी नहीं होगी, क्योंकि वो नए लोगों का वे ऑफ वर्किंग विल बी डिफरेंट. तो भी एक इश्यू होता है कि पहले मेरा बॉस था वो ऐसा था, अभी जो नया बॉस है वो ऐसा है. सो अगेन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स अ चैलेंज फॉर द एचआर पीपल, क्योंकि उनको ह्यूमंस के साथ डील करना है. मशीन प्लांट वो सब तो सेम ही रहेगा, भले ऑनर को भी बदल जाए. ओके, आज मेरा आईफोन बेच दिया किसी और को, तो उसके पास जाकर आईफोन के फीचर थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो सेम ही रहेंगे. ओके, अभी और 2 पॉइंट है, बट सिंस इट इज ओनली 1 मिनट लेफ्ट, सो किसी को कोई डाउट्स है? एनीबडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है मुझसे? बिकॉज ओनली 1 मिनट लेफ्ट नाउ. 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 40 मिनट का ड्यूरेशन लिमिट है. सो किसी को कोई डाउट? मैंने जो आज का कंटेंट समझा उसमें समझ में आया सबको, या कुछ नहीं समझा, या कुछ डाउटफुल है, या कुछ एक्स्ट्रा एलोबरेशन चाहिए? अगर बाद में भी ऐसा कुछ आपके ध्यान में आता है तो यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप, मैं ग्रुप में रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको. और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है. Sir, please share the screen so that we can note the points. नोट दी पॉइंट्स. ओके, आई विल डू दैट. मैं जो भी कुछ मेरे पास जो मैंने नोट किया हुआ है, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल इन द ग्रुप. ओके, बिकॉज यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने में कहता है मतलब जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए आई ट्राई टू स्टिक टू माई सेल्फ ओनली. कई बार आप देखते हैं कुछ स्क्रीन पे कुछ लिखा हो, आपका ध्यान उसमें पढ़ने में है, तो उस टाइम पे आपका सुनने का कैपेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज आपका